Hello my dear students, welcome to the next video of democracy. We are discussing the notes of democracy. Earlier I have already uploaded the first part where we have discussed about the what is democracy, what is a constitution, how constitution has enacted, how constitution formed in India, okay, who formed it, how it came, isn't it, what is cabinet missions, what is constituent assembly. We have discussed already all these things, and we have already discussed about preamble also. What is preamble? So preamble is the introductory part of the constitution. Okay, now we are going to discuss about the next part of the notes of democracy, that is the ideals of constitution. We are going to discuss about what are the ideals of constitution. Okay, so let me start. The maker of the Indian constitution have especially reflected the ideals and objective of the constitution by mentioning the establishment of justice, liberty, equality and fraternity. Actually our constitution uphold this four things. One is justice, one is liberty, one is equality, other one is the fraternity. Okay, our constitution is just uphold and just have this objective, so that every people get justice, every people get liberty, every people can live equally, that is the equality and fraternity. Okay, so now the point here is Pandit Nehru put forward a few objective resolution at the Constituent Assembly on 13 December 1946. आपको मैंने बताया था कंस्टिट्यूएंट असेंबली जब बना था तब पंडित नेहरू ने, मैंने ये शायद मेंशन नहीं किया लेकिन अब कर रहा हूँ, पंडित नेहरू ने उनका कुछ ऑब्जेक्टिव दिया था, उन्होंने कुछ बताया था, कुछ उन्होंने पॉइंट्स दिए थे कि ये सब चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में या हमको एक्चुअली ये सब बातों के ऊपर मद्देनज़र रखना चाहिए. दैट मीन्स वी हैव टू लुक आफ्टर दिस पॉइंट्स. सो ही हैड पुट फॉरवर्ड सर्टेन फ्यू ऑब्जेक्टिव, ओके, ऑन दैट इज ऑन 13 December 1946 at the Constituent Assembly. Okay, and also remember the Constituent Assembly accepted this objective resolution that is put forward by पंडित नेहरू. पंडित नेहरू ने जो भी ऑब्जेक्टिव दिया था उसको एक्सेप्ट कर लिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में. कब? 22 जनवरी 1947 को. ओके, ये जो प्रपोजल है ये अडॉप्ट किया गया था. पंडित नेहरू ने जो सजेशन दिया था उसको अडॉप्ट किया गया था. ठीक है ना. उन्होंने किसके बारे में बोला था? इक्वलिटी के बारे में बोला था, लिबर्टी के बारे में बोला था, डेमोक्रेसी के बारे में बोला था, सॉवरेनिटी के बारे में बोला था, फेटर्निटी, वर्ल्ड फेटर्निटी के बारे में बोला था. ओके, और फॉर्मली इनके जो सजेशंस थे, इनके जो ऑब्जेक्टिव थे, उनको क्या किया गया था? एक्सेप्ट कर लिया गया था. किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया था. अब तुम पूछना नहीं सर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, क्योंकि मैंने पहला जो वीडियो है नोट्स का उसमें पूरा अच्छा से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है मैंने अच्छी तरह समझाया. अगर किसी ने मेरा ये वीडियो नया देख रहे हो तो काइंडली आगे वाला वीडियो देख लीजिएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा. सो यू विल गेट द what is understanding and get the knowledge what is constituent assembly, okay, what is cabinet mission and all these things. Okay, now see main points of the objective resolution. तो क्या क्या points था जिसके बारे में पंडित नेहरू ने बात किया था और पंडित नेहरू ने किसके ऊपर बेस करके उनके ऑब्जेक्टिव को दिया गया था. ठीक है ना. हाउ पंडित नेहरू हैड पुट फॉरवर्ड दैट ऑब्जेक्टिव. ओके, व्हाट आर द मेन पॉइंट्स. ओके, सी the constituent assembly is determined to declare India as an independent sovereign republic. Okay, इंडिया को क्या डिटरमाइन करना है और क्या डिक्लेयर करना है कि इंडिया एक सोवरेन रिपब्लिक है. सोवरेन रिपब्लिक मतलब किसी के अंदर निर्भरशील नहीं है, मतलब दे आर इंडिपेंडेंट. इंडिया को कभी पूछने का जरूरी नहीं होना चाहिए कि कुछ काम करने से पहले किसी का फॉरेन पावर का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, उसी को सॉवरेनिटी बोलते हैं. तो this objective was there in the Constituent Assembly, and this objective was put forward by Pandit Nehru, that India should be independent and it should be sovereign. There should not be any interference of the other country. Hope you have understood this point. Second, a union of states shall be constituted with the British rule Indian territory and the Earthwell's princely kingdom willing to join the Indian territory. That means एक union in states को बनाया जाएगा. ठीक है ना. किसके साथ मिलके? जो ब्रिटिश रूल इंडियन टेरिटरी है उनके साथ मिलके यूनियन स्टेट का गठन किया जाएगा, और जो इंडियन टेरिटरी को ज्वाइन करना चाहता है उनको इजीली उनको ज्वाइन करने का मौका दिया जाएगा. ठीक है, दैट इज द सेकंड पॉइंट. थर्ड, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, इक्वलिटी, रिलीजियस लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेसिंग थॉट एंड ओपिनियन ऑफ द इंडियन पीपल विल बी ड्यूली रिकॉग्नाइज. हाँ, क्या क्या रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा?
social rights, economical rights, political justice, equality, religious liberty, freedom of expressing thought and opinion of the Indian people will be duly recognized. ये सारे चीज़ को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, ठीक है। पॉलिटिकली जस्टिस के बारे में जस्टिस सबको मिले उसको मद्देनज़र रखना पड़ेगा। इक्वलिटी, दैट एवरी पीपल गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एवरी सेक्टर, ओके। देयर शुड बी रिलीजियस लिबर्टी, रिलीजियस लिबर्टी मतलब धर्म को मतलब किसी का रोक टोक नहीं होना चाहिए, मतलब जिसको जो मन चाहे वो उस रिलीजन को फॉलो करे। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेसिंग थॉट, अपना थॉट को एक्सप्रेस करने का मौका देना चाहिए। सो इससे ये सभी ऑब्जेक्टिव को रिकॉग्नाइज किया गया था, ओके, एंड इसको सुना गया था। फोर्थ, देयर शैल बी मेजर टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास एंड द माइनॉरिटी। और एक बात बताया गया था उस ऑब्जेक्टिव में, ये बोला गया था कि शेड्यूल कास्ट जो थे, शेड्यूल ट्राइब जो थे, बैकवर्ड क्लास जो थे, उनके जो इंटरेस्ट थे, उनके जो मतलब उनके जो डिमांड्स थे उनको, और उनके जो प्रॉब्लम्स थे उनको मद्देनजर रखते हुए हर चीज़ को करना चाहिए। इस तरह का पॉइंट इंक्लूड किया गया था। मतलब सिंपली ये बोले तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास, माइनॉरिटी पीपल के बारे में सोचने को बोला गया था, उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने को बोला गया था। इस ऑब्जेक्टिव को वो मद्देनजर रखा गया था बिफोर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री। होप यू हैव अंडरस्टूड। फिफ्थ, importance shall be given to safeguard the freedom of sovereignty and integrity of country. Yes, हमारे इंटीग्रिटी को, हमारे फ्रीडम को, हमारे सॉवरिनिटी को सेफगार्ड करने का भी मतलब ऑब्जेक्टिव सजेशन किया गया था। इनको भी देखना बहुत ही जरूरी है, हमारे इंटीग्रिटी को, हमारे फ्रीडम को, हमारे सॉवरिनिटी को। इंडिया शैल बी एक्सटेंड फुल कोऑपरेशन फॉर द सेक ऑफ कोऑर्डियल इंटरनेशनल रिलेशन, वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल। और इंडिया को फुल कोऑपरेशन करना चाहिए जब भी इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में बात हो, जब भी वर्ल्ड पीस के बारे में बात हो, या वेलफेयर ऑफ द पीपल के बारे में बात हो। वर्ल्ड पीस मतलब दैट मीन्स देयर शुड बी पीस इन द होल वर्ल्ड। इसके बारे में अगर कुछ बातचीत हो, या इंटरनेशनल रिलेशन मतलब एक कंट्री के साथ दूसरे कंट्री का जो रिलेशन है उसको अगर कभी मतलब इंडिया का कुछ सपोर्ट चाहिए तो इंडिया फुल कोऑपरेशन करेगा, या इंडिया को फुल कोऑपरेशन करना चाहिए। तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव को देखा गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट, द पीपल ऑफ इंडिया शैल बी द सोर्स ऑफ ऑल पावर, द गवर्नमेंट ऑफ द सॉवरेन स्टेट्स एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट शैल ऑब्टेन देयर पावर फ्रॉम द पीपल। हाँ, ये 7 पॉइंट क्या बताया गया कि हमारा जो देश वो किसके द्वारा चलेगा, पीपल के द्वारा। दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया, दैट मीन्स पीपल आर ऑल इन ऑल, दे आर द ऑल सोर्स ऑफ पावर। दैट मीन्स सोर्स ऑफ ऑल पावर किसके हाथ में रहेगा, पीपल के हाथ में रहेगा। इसलिए इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। Yes, get it? So that is another 7 point which has been put forward. Again, 8, the indigenous princely state desiring to join the Indian Union shall enjoy the state of constituent province through self-governance with the residuary power. जो indigenous princely states थे, जो princely states थे उस टाइम जिसको शासन किया था राजा के द्वारा, उनको constituent province का स्टेटस दिया जाएगा, इसके बारे में भी बोला गया था। और उनको मौका दिया जाएगा क्या गवर्नेंस के लिए, सेल्फ गवर्नेंस के लिए मौका दिया जाएगा, इसके बारे में भी बोला गया था। लेकिन ये जो 8 पॉइंट है ना, इसको इतना ज़्यादा एक्सेप्टेबल या इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया नहीं गया। लेकिन बाकी जो 7 ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था दैट वाज पुट फॉरवर्ड बाय पंडित नेहरू वाज बीन accepted. Okay, conclusion में मैं एक बात लिखा हूँ that the maker of Indian Constitution accepted the above resolution as the main basis and thus gave importance to the ideals and the legacy of thousands of years old Indian culture and civilization. तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया। किसने फ्रेम किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फ्रेम किया, isn't it? So कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जब ये फ्रेम किया तो इस बात को, इस ऑब्जेक्टिव को जो पंडित नेहरू ने पुट फॉरवर्ड किया था उसको मद्देनजर रखते हुए हर चीज को किया गया। दैट मीन्स दिस ऑब्जेक्टिव प्ले वाइटल रोल while making the constitution of our country. They had kept in mind that we have to look after these things also. Okay, so that is the thing. Hope you have understood. Next बोला गया है the federal characteristics of Indian political system. तो federal characteristics, पहले federalism पढ़ाने से पहले मैं कुछ बता दूँ what is federal. Federal क्या है? Federal is a system of government. ये एक system of government. ये किस system of government है? जहाँ 2 से अधिक सरकार रहते हैं, 2 या 2 से अधिक, when power is divided between 2
or more than 2 form of government, that kind of system of governance is called federal political system or federal government. तो उसी फेडरेशन को हम क्या बोलते हैं, जहाँ पावर को डिवाइड किया जाता है, एक के पास ना रखे, पावर को डिवाइड किया जाता है, उसी को हम फेडरेशन बोलते हैं या फेडरल सिस्टम पॉलिटिकल सिस्टम बोलते हैं. इंडिया भी एक फेडरल कंट्री है, बट इंडिया ट्रू फेडरल नहीं है. इंडिया ट्रू फेडरल नहीं है क्योंकि इंडिया के अंदर यूनिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिखाया जा, मतलब दिखाया जा, मतलब देखने को मिलते हैं. हमको यूनिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स भी मिलते हैं. आप पूछ सकते हो सर यूनिटरी मतलब क्या? यूनिटरी मतलब जहाँ एक ही गवर्नमेंट है. अब तुम बोल सकते हो सर इंडिया में तो एक ही गवर्नमेंट तो नहीं है, इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ स्टेट गवर्नमेंट पावर शेयर करते हैं, फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के बाद थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट नहीं है जो जिसको हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं. ये तो है, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट टोटली इंडिपेंडेंट नहीं है, ना कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट टोटली इंडिपेंडेंट है. सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहता ही है. सो सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर इन मैटर्स समटाइम्स इन मैटर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. लेकिन ट्रू फेडरेशन में स्टेट का अपना पावर होता है, टोटल अपना पावर. दे आर नॉट रेस्पॉन्सिबल टू द आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. जैसे कि अमेरिका ट्रू फेडरल है क्योंकि उनका इंडिपेंडेंट स्टेट्स का अपना पावर है और दे आर नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. सो दैट इज अ ट्रू फेडरल. इंडिया इज नॉट अ ट्रू फेडरल बिकॉज इंडिया हैव बोथ फेडरल एज वेल एज यूनिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स. दैट इज वाई इंडिया इज कॉल्ड क्वासी फेडरल. इंडिया को इसलिए बोला गया है क्वासी फेडरल या पिकुलियर फेडरेशन भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें फेडरल एज वेल एज यूनिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स है. अब व्हाट इज फेडरल सिस्टम थोड़ा सा डिटेल्स में मैं इधर बताया, मैंने काफ़ी सारा बात आप लोग को बता दिया, लेकिन अभी नोट्स में पढ़ते हैं. देखिए, द वर्ड फेडरेशन कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड फिडस. ये जो फेडरेशन शब्द है किस शब्द से आया है? फिडस शब्द से आया है. इसका अर्थ क्या है? एग्रीमेंट और ट्रीटी. किसके बीच एग्रीमेंट? किसके बीच एग्रीमेंट? स्टेट्स के बीच. स्टेट्स के बीच, सरकार के बीच, जिसको एग्रीमेंट बोला जाता है, जिस एग्रीमेंट के द्वारा पावर को शेयर किया जाता है, उसी को हम फेडरेशन बोलते हैं. इट इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स यूनाइटेड थ्रू म्यूचुअल एग्रीमेंट और ट्रीटी. मतलब स्टेट्स का जब म्यूचुअली एग्रीमेंट होता है, ठीक है ना, और एक बड़ा देश बनता है, उसी को हम फेडरेशन बोलते हैं. और स्टेट और सेंट्रल के बीच जब पावर शेयर किया जाता है. ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविंस रिकॉग्नाइज द सॉवरेन पावर ऑफ द सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट एंड रिटेन देयर ओन फ्रीडम एंड इंडिविजुअलिटी. ठीक है, तो सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट का अपना पावर होता है, उसका अपना इंटीग्रिटी होता है, अपना इंडिविजुअलिटी होता है, अपना फ्रीडम होता है. इन इंडिया द प्रोविंसेस हैव बेस्टोड सॉवरेन पावर ऑन द सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट. इंडिया में भी सॉवरेन पावर किसके अंदर है? सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट के अंदर है. अंडरस्टूड? होप देयर इज नो एनी प्रॉब्लम. ओके, नेक्स्ट, ओरिजिन ऑफ फेडरल सिस्टम. फेडरल सिस्टम कहाँ ओरिजिन हुआ था? इवन बिफोर इंडिपेंडेंस द फेडरल सिस्टम was set up in India as part of Government of India Act 1935 passed by the Parliament of India. ठीक है, इंडिपेंडेंस से पहले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा इंडिया में फेडरल सिस्टम स्टार्ट हो गया था. ठीक है ना. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किसने पास किया था? पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड ने पास किया था. उस समय क्योंकि हम इंग्लैंड के शासन के अंदर थे, तो उस पार्लियामेंट ने इस एक्ट को पास किया था और इसके तहत इंडिया एक फेडरल सिस्टम था उसी समय. फेडरल सिस्टम मतलब मैं जो कब से बोल रहा हूँ, दैट मीन्स टू टायर गवर्नमेंट. दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट को यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं, कंफ्यूजन मत होना. वी कैन से सेंट्रल गवर्नमेंट एज यूनियन गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशियल मीन्स रीजनल गवर्नमेंट, व्हिच इज आल्सो कैन बी कॉल्ड एज नाउअडेज इट कैन बी कॉल्ड एज स्टेट गवर्नमेंट. ओके, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, दैट मीन्स पावर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड. ओके, सो फेडरल सिस्टम फेमिलियर है, पहले से ही फेडरल सिस्टम इंडिया में फेमिलियर है. बट मैं फिर से बता रहा हूँ, इंडिया एक ट्रू फेडरल नहीं है. ठीक है ना, ट्रू फेडरल यूएसए है. सो व्हाई डिड इंडिया फॉलो द कैनेडियन मॉडल? ओके, ठीक है ना. द फेडरल सिस्टम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस. ये मेरा पॉइंट थोड़ा सा गलती हो गया, इसको पढ़ना नहीं, लेकिन पॉइंट लोग देखते जाओ. द फेडरल सिस्टम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन यूएसए. फेडरल सिस्टम पहले कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था? यूएसए. इसलिए यूएसए को हम लोग बोलते हैं होमलैंड ऑफ फेडरेशन. क्वेश्चन आ सकता है, व्हिच कंट्री इज रिगार्डेड एज द होमलैंड ऑफ फेडरेशन? दैट विल बी द
यूएसए। ओके ओके, लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने यूएसए का फेडरल सिस्टम को टोटली फॉलो नहीं किया है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया गया है। वी हैड फॉलोड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द मेकर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलोड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। ओके, कनाडा। इन द यूएसए द स्टेट एंजॉय मोर फ्रीडम एंड हैव डुअल सिटीजनशिप। हाँ, यूएसए में स्टेट्स का ज़्यादा फ्रीडम है जो कि इंडिया में नहीं है, ठीक है ना, और वहाँ डुअल सिटीजनशिप है और इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। अब तुम पूछ सकते हो सर डुअल सिटीजनशिप कैसा और सिंगल सिटीजनशिप? देखो, हम जो भारतवासी है, जो भारत में रहते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, एक्चुअली व्हेन एवर वी गो आउटसाइड और व्हेन एवर वी आइडेंटिफाई आवरसेल्फ, विल से दैट वी आर इंडियंस। ना कि जो अपने स्टेट से बिलोंग करते हैं वो बोलते हैं ना हम वी आर फ्रॉम महाराष्ट्र, वी आर महाराष्ट्रियन, वी आर फ्रॉम असम, ओके वी बिलोंग टू असमीज कम्युनिटी, वी हैव दैट सिटीजन। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग कहीं भी जाएं तो हम लोग क्या बोलेंगे, वी आर इंडियन, वी हैव ओनली वन सिंगल सिटीजनशिप। लेकिन यूएसए में डुअल सिटीजनशिप है। डुअल सिटीजनशिप का स्टेट अर्थात क्या है? अर्थात ये कि एक सिटीजन अपना स्टेट का भी सिटीजन है एंड ही इज ऑल्सो द सिटीजन ऑफ द होल कंट्री। If you properly notice the USA flag, you will able to understand that USA have 50 stars, representing 50 independent states. Independent states. Remember, I am using the word independent. Why? Because they are independent. They have their own power. They have their own jurisdiction. And a person, as a citizen, a person of America is also the citizen of a state. He is also the citizen of a country. So he have dual citizenship. And also have separate constitution. Remember, India has only one constitution. So that is why USA is true federal. In newborn India, if states were given such freedom, natural integrity could be in danger. India में कभी भी स्टेट को इस तरह का फ्रीडम नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया? तब नेशनल इंटीग्रिटी नहीं रहेगा, यूनिटी नहीं रहेगा, देश में अशांति या देश में मतलब कोई भी वायलेंस होने का चांस हो सकता है और इंडिया सेपरेट हो सकता है, बिकॉज इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। सो वी कांट डू दैट। देयरफॉर इंडिया एडॉप्टेड ए लूज फेडरेशन। इसलिए इंडिया ने लूज फेडरेशन अपनाया। अमेरिका का टोटल फेडरेशन को कॉपी नहीं किया। लूज फेडरेशन मतलब थोड़ा सा फ्लेक्सिबल ईजी, मतलब जिस तरह कनाडा यूज़ किया है, जिस तरह कनाडा ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है। इसीलिए जो डायरेक्ट फेडरेशन का शब्द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कभी यूज नहीं किया गया है। ओके, इंडिया में कभी डायरेक्ट फेडरेशन का बात नहीं किया। डायरेक्टली फेडरेशन, फेडरल कंट्री ऐसा नहीं बोला गया। इंडिया को बोला गया है यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट। ओके, यूनियन ऑफ स्टेट्स। सो यूएसए ट्रू फेडरेशन, more freedom of states, dual citizenship, separate constitution. India not true federal, okay, India had applied Canadian model, okay, less freedom to states, single citizenship, one constitution. Okay, features of Indian federal system, characteristics, कुछ characteristics आ सकता है Indian federal system का, कुछ characteristics आ सकता है, तो क्या लिखोगे? What you will write? Okay, that will be the इंडिया इज ए क्वासी फेडरल और पिकुलियर फेडरेशन। इंडिया को क्वासी फेडरल बोला गया या पिकुलियर फेडरेशन, जो मैंने पहले ही बता दिया कि पिकुलियर, यूनिक। ओके, इट इज कॉल्ड सेंट्रलाइज फेडरेशन। हमारे फेडरेशन को सेंट्रलाइज फेडरेशन बोला जाएगा क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ज़्यादा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है, इसलिए सेंट्रलाइज फेडरेशन कहा गया है। ठीक है ना? नहीं तो क्वासी फेडरल भी बोल सकते हो, या पिकुलियर फेडरेशन, मतलब पिकुलियर मतलब कहीं भी नहीं मिलने वाला, थोड़ा सा यूनिक, वी आर पिकुलियर। इसलिए इंडिया को बोला गया है फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट। फेडरल इन फॉर्म देखने में फेडरल लगता है लेकिन एक्चुअली यूनिटरी है। ठीक है ना? सो इंडियन स्टेट्स हैव नो राइट टू सीट फ्रॉम द यूनियन। यस, इंडियन स्टेट्स का पूरा राइट्स नहीं है कि यूनियन के अगेंस्ट जाए या यूनियन के खिलाफ कुछ बोले या यूनियन के अगेंस्ट कुछ करे। देयर इज ओनली वन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर होल इंडिया। पूरे भारतवर्ष में सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन द स्टेट गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल है स्टेट गवर्नमेंट से। सो दैट इज वाई इंडिया इज नॉट ट्रू फेडरल। ट्रू फेडरल होने के लिए स्टेट का इंडिपेंडेंट पावर होना अनिवार्य है। दैट मीन्स स्टेट शुड हैव इंडिपेंडेंट पावर एंड दे मस्ट बी पावरफुल enough and they can or they have the power to
make laws, make rules by themselves. They are not answerable to the central government. So that is a true federalist. इंडिया ट्रू फेडरल नहीं है, इंडिया क्वासी फेडरल है. देखने में फेडरल लगता है क्योंकि 2-3 सरकार है, पावर डिवाइड है, लेकिन पावर डिवाइड होने के बावजूद भी फाइनली सबसे ज़्यादा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है, क्योंकि उनको सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकता है. ओके, इंडिया में जो पावर डिवाइड किया गया है, इंडिया में जो पावर डिवाइड किया गया है सेंटर और स्टेट के बीच, सेंटर और स्टेट के बीच जो पावर डिवाइड किया गया वो 3 लिस्ट के द्वारा डिवाइड किया गया है. पहला बोला गया है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट. अब यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट, इसमें नोट्स में ज़्यादा एलाबोरेटली नहीं है, मैं आपको बताने का कोशिश करता हूँ. यूनियन लिस्ट क्या है, स्टेट लिस्ट क्या है, कंकरेंट लिस्ट क्या है. सो पावर आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट थ्रू 3 लिस्ट. सो वन इज यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट. मतलब यूनियन लिस्ट, यूनियन का सब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ना. तो इस लिस्ट में जितना भी सब्जेक्ट है, जितने भी सब्जेक्ट के बारे में बोला गया है, इस सभी सब्जेक्ट में यूनियन गवर्नमेंट एटलीस्ट स्टेट गवर्नमेंट का पावर है. अब तुम पूछ सकते हो सर यूनियन लिस्ट में कौन कौन सा सब्जेक्ट मैटर है. सो आई विल लेट मी टेल यू. सो द सब्जेक्ट्स लाइक फॉर करेंसी, सब्जेक्ट लाइक डिफेंस, बैंकिंग, इंटरनेशनल रिलेशन, बैंकिंग, डिफेंस, करेंसी, ये सब जो चीज़ है, ये सब जो मैटर है, ये यूनियन लिस्ट के अंदर है. और कुछ है मैं अभी याद रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन याद रखना कि इस तरह का सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट मैटर के बारे में बोला गया है, द सब्जेक्ट मैटर व्हिच इज देयर इन द यूनियन लिस्ट. यूनियन लिस्टत যোনখিনি सब्जेक्ट लिखा গৈছে বা यूनियन लिस्टत যোনখিনি सब्जेक्टर কথা কোৱা গৈছে, so these subjects are controlled by, or in this subject the power are under the hands of union government, or you can say central government. State list, so the power which is under the state government, that means the subject where state can take decisions, agriculture, police, local problems. Okay, these are certain what you can say subjects, irrigations, okay, transportation. These are certain subjects where state government can openly or independently can make decisions that, and these subjects are under state list. और इस सब्जेक्ट को किसके अंदर रखा गया है, स्टेट लिस्ट. अब थर्ड हो गया कंकरेंट लिस्ट. कंकरेंट लिस्ट ऐसा सब्जेक्ट्स है जो सब्जेक्ट दोनों यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट, मतलब दो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके इन सब्जेक्ट के ऊपर डिसीजंस लेते हैं. मिलके जिस सब्जेक्ट के ऊपर डिसीजन लेते हैं वो कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है. ठीक है ना. कभी कभी स्टेट के बाउंड्री के बाहर भी कुछ काम हो जाता है, जब सेंट्रल को इंटरफेयर करना पड़ता है, तो वो सब सब्जेक्ट मैटर कंकरेंट लिस्ट में आएगा. जैसे कि एजुकेशन भी इस तरह का ही एक सब्जेक्ट है जो दोनों मिलके ही लेते हैं. ठीक है ना. और एक बात बोल दूं, अब तुम पूछ सकते हो सर कई सारे सब्जेक्ट, कुछ भी ये सब्जेक्ट भी हो सकते हैं जो इन तीनों लिस्ट में नहीं है, जैसे कि IT या AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब बहुत बाद में आया, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद आया. ठीक है ना. तो ये सब सब्जेक्ट के बारे में उस समय सोचा नहीं गया था, और ये सब सब्जेक्ट मतलब इन तीनों लिस्ट में नहीं है, तो उस सब्जेक्ट में कौन डिसीजन लेगा. तो हु टेक द डिसीजंस ऑन दिस 3 सब्जेक्ट्स, ऑन दिस सब्जेक्ट व्हिच इज नॉट इन यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट. ऑन दिस सब्जेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक डिसीजंस, एंड दिस सब्जेक्ट्स आर कॉल्ड रेसिडुअरी सब्जेक्ट. जो इधर नहीं दिया गया है, मैं अल्टीमेटली अपने से बता रहा हूँ, जो सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में नहीं है उसको हम रेसिडुअरी सब्जेक्ट बोलते हैं, और वो उस सब्जेक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक डिसीजंस. ओके, सो दैट इज द थिंग. अगेन गवर्नर, प्रेसिडेंट्स, गवर्नर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नमेंट को अपॉइंट किया जाता है. ओके, दे एक्ट एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नर लोग. स्टेट में जो गवर्नर रहते हैं, दे आर व्हाट, दे आर सेलेक्टेड, दे आर अपॉइंटेड, दे आर नॉट इलेक्टेड. वो इलेक्शन खेल के नहीं जीत के आए हैं गवर्नर लोग, याद रखना. उनको सेलेक्ट किया जाता है, उनको इलेक्ट किया जाता है. ठीक है ना. और उनको नॉमिनेट किया जाता है या अपॉइंट किया जाता है, ना कि इलेक्ट किया हुआ कैंडिडेट, मतलब ना कि इलेक्शन खेल के जीत के आया हुआ, ऐसा नहीं है. ठीक है ना. इंडिया में डुअल सिटीजनशिप नॉट अलाउड है, नहीं है. ए पर्सन इज ओनली द सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉट ऑफ एनी स्टेट. कोई भी स्टेट का सिटीजन्स नहीं है.
That is why India is quasi-federal, peculiar federation. Okay. जब एक बार क्या होता, स्टेट्स ने फ्रीडम के बारे में बात किया था, ठीक है ना, डिमांड किया था कि स्टेट को फ्रीडम चाहिए, ज़्यादा फ्रीडम चाहिए, तो एक कमीशन का गठन किया गया, जिस कमीशन का नाम था सरकारी कमीशन, दैट वाज इन 1983, जिसके द्वारा ये निश्चित किया गया कि द स्टेट विल नॉट टोटली इंडिपेंडेंट, दे आर अंडर द गाइडेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है ना, कभी कभी दिखा जाता है सेंट्रल और स्टेट के बीच मतभेद दिखाई पड़ता है, ठीक है ना, लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट अंपायर जैसा काम करता है। जब दो सरकार के बीच काम मतलब कुछ भी होता है ना, इफ देयर इज अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, एनी स्टेट गवर्नमेंट, सो सुप्रीम कोर्ट प्ले एज ए रोल ऑफ एम्पायर एंड दे ट्राई टू सॉल्व ऑल दिस थिंग्स। ओके, सो इंडिया फेडरल सिस्टम टोटली सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप में बंधा हुआ है, मतलब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का टोटल रिलेशंस के द्वारा देश चलता है। इसलिए इंडिया का जो फेडरेशन है इसको हम कोऑपरेटिव फेडरेशन बोल सकते हैं, दोनों मिलके चलाते हैं, अकेला नहीं। पिकुलियर फेडरेशन बोलते हैं, कोऑपरेटिव फेडरेशन बोल सकते हैं, कुछ भी क्वासी फेडरल बोल सकते हैं, लेकिन ट्रू फेडरल इंडिया तो नहीं है। होप आपको समझ में आ गया हो। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू मेक यू एक्सप्लेन एवरीथिंग। बुझी पाइसा हो पाए सोबे, ठीक है सर। ओके, नाउ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। देखो डेमोक्रेसी टू टाइप का होता है, देयर आर टू फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, वन इज पार्लियामेंट्री, अदर वन इज द प्रेसिडेंशियल। जो भी कंट्री में इफ इन ए कंट्री प्रेसिडेंट इज द हेड, उस फॉर्म को हम बोलेंगे प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। एंड इफ इन ए कंट्री प्राइम मिनिस्टर इज द हेड, दैट फॉर्म विल बी कॉल्ड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ओके, उसी फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, पार्लियामेंट्री। ठीक है ना, ठीक है ना। और जो भी डेमोक्रेटिक सेटअप में पीपल के द्वारा चुने गए लोगों के पास पावर रहे, मतलब द रिप्रेजेंटेटिव, द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, मतलब जिसको पीपल ने चुना है, इलेक्शन खेल के जिता के भेजा है पार्लियामेंट में, और उनके पास पावर रहने को ही हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में उसको या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बोल सकते हैं। उसी बॉडी को हम पार्लियामेंट बोलते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में ही जाके उन लोग एमपी लोग बैठते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दे इलेक्ट इलेक्शन, दे विन इलेक्शन, दे बिकम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओके, पार्लियामेंट को यूएसए में क्या बोला गया है, कांग्रेस। इंडिया और इंग्लैंड में क्या बोला गया है, पार्लियामेंट। सिंपली जो भी इलेक्टेड लीडर जिसको इलेक्शन के द्वारा जिता के भेजा गया है, वो कहाँ जाके बैठेंगे, पार्लियामेंट में इंडिया में, और यूएसए में कहाँ जाके बैठेंगे, कांग्रेस में। ठीक है ना, तो उसी को पार्लियामेंट या कांग्रेस बोला गया है। ओके, सो इंडिया एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जहाँ हेड ऑफ द स्टेट प्राइम मिनिस्टर है, ना कि प्रेसिडेंट। ठीक है ना, वो भी याद रखना, वो पॉइंट मैंने लिखा नहीं हो लेकिन याद रखना। ओके, सो इंडियन पार्लियामेंट का थोड़ा सा देख लो। लोकसभा दैट इज द लोअर हाउस, राज्यसभा अपर हाउस। उसके बाद कोई भी चीज़ लोकसभा में डिस्कस होता है, फिर राज्यसभा में जाता है, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है। सो ये फॉर्म है, स्ट्रक्चर है इंडियन पार्लियामेंट का। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंडिया, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तो इंपॉर्टेंस आप लोग पढ़ लेना, क्योंकि मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वीडियो बहुत ही लेंथी हो चुका है, अपलोड करने के लिए थोड़ा सा मतलब सर्वर का इशू आ जाता है। ठीक है ना, थोड़ा सा ये पॉइंट पढ़ लीजिएगा, क्योंकि लेसन मैंने अच्छे से समझाया, तो यू जस्ट गो थ्रू द इंपॉर्टेंस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। और देयर इज सर्टेन पॉइंट्स विच आई एम गिवन, इधर में कहा साइड में दिया गया है, मेन डिफरेंस बिटवीन इंडिया पार्लियामेंट्री सिस्टम और इंडियन गवर्नमेंट और इंग्लैंड गवर्नमेंट के बीच, इंग्लैंड के शासन के बीच इंडिया किस तरह शासन करते हैं, इसमें क्या क्या डिफरेंस है, आ सकता है। सिमिलरिटी तो आप मतलब सभी को पता है, व्हाट आर द डिफरेंस। इंडिया इज रिपब्लिक, इंग्लैंड इज नॉट। इन इंडिया हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट मतलब हेड ऑफ द कंट्री का बात कर रहे हैं, ये इलेक्टेड है, पीपल के द्वारा चुना गया है। इन इंग्लैंड में किंग और क्वीन इज हेरिडिटेरी। ओके, इंडिया में पावर अपर हाउस, राज्यसभा और लोकसभा के बीच डिवाइड होता है। ठीक है ना, पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड इज मोस्ट पावरफुल, इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट सो पावरफुल। द इंडियन पार्लियामेंट डेमोक्रेसी इज सुटेबल टू इंडियन कंडीशन एंड हैज मेड इंडिया डिस्टिंग्विश्ड डेमोक्रेसी। जो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है इंडियन पीपल के लिए सुटेबल है, और इंग्लैंड का इंग्लैंड पीपल के लिए। सो देखो, कोई भी पार्लियामेंट्री सिस्टम, कोई भी सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जब एक देश में बनता है, वो वहाँ के लोगों को मद्देनज़र रख के बनाया जाता है। इसलिए कोई भी सिस्टम, कोई भी डेमोक्रेटिक सिस्टम अच्छा है खराब है, हम डायरेक्टली
ऊपर ऊपर से नहीं बोल सकते, उसके उनके हिस्ट्री को देखना बहुत ही ज़रूरी है। होप you have understood what I have explained today. I have tried my best to make you understand everything. उसके बाद भी अगर कुछ समझ में नहीं आया है তাৰপিছতো যদি কিবা বুজি পোৱা নাই, you can comment me. I will try my best to explain again if time prefers me, if time favors me. And if you like my video, kindly share, subscribe. Thank you. Have a good day.